Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss the nicotine under the course number 602 of the pharmacy practice, and this is the topic which we are covering under the addictions. So, what is nicotine? Basically, we are going to be discuss the addiction of the cigarettes, and the main component of the cigarette, as we all know, that is the nicotine. Nicotine is colorless toxic alkaloid, and basically it is made up of the carbon, hydrogen and the nitrogen. It is the main concern worldwide because its ability to induce the state of euphoria, and it alters the brain of the smoker, which lead to the addiction. यानी basically इसमें भी एक टेंडेंसी है कि ये यूफोरिया इंड्यूस कर सकता है. When a person smokes and inhale the nicotine, and this nicotine get absorbed through the alveoli into the lungs, and it initiates several chemical reactions at the nerve ending. बिकॉज इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो मेनली जो है वो सी एन एस से प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर बेसिकली हैव अ डुअल इफेक्ट ऑन द सी एन एस. द इंक्रीजेज nicotine increases the heart rate, it improves the memory, it increases the alertness, and to majorly, if we talk about the addiction, it basically alter the dopamine and later on endorphins. दो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बेसिकली डोपामिन को ये ऑल्टर करता है, एंड सेकेंडली एंडोर्फिन्स को भी एक्टिवेट करता है, विच लीड टू दी फीलिंग ऑफ द प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन. This addictive drug, which is the nicotine, is have the dual effect. It is a stimulant as well as it is a depressant. Furthermore, the smoke of the cigarette is also have a significant effect on the development of the cancers and several disease related to the lungs, like pulmonary disorders, especially chronic obstructive pulmonary diseases. Lastly, several children and mothers are exposed to the second-hand smoke, which are usually produced during the smoking, and these are responsible for the development of the variety of the respiratory disorders and morbidity. As we all know that we are talking with the drug addiction, so it is the essence of this is the loss of control of drug use. यानी इसमें निकोटीन का हम देख रहे हैं बेसिकली, तो निकोटीन as a drug is used by a person for the satisfaction, for the stimulant effect, for the euphoria, and there will be the loss of control of the use of the drug. यानी in eventually the person is continuously smoking. एक सिगरेट लेने के बाद उसको दूसरी उसकी डिज़ायर होगी कि वो फिर मज़ीद सिगरेट स्मोक करे, and it is basically the disease of the brain reward center. If we talk about the demographic condition of the smoking in our worldwide, so basically we can see in a picture, you can see कि ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये प्रॉब्लम है मेजरली ऑफ द पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान की. बाकी सॉरी अफ़गानिस्तान की नहीं है, सॉरी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है मेन प्रॉब्लम है, जिसमें 54% जो है वो इंडियन पॉपुलेशन एंड 32% जो है वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो मेनली सफ़र हो रही है ड्यू टू दी हैबिट्स ऑफ दी स्मोकिंग. इट मीन्स कि 32% जो हैं वो लोग पाकिस्तान में स्मोक करते हैं. अगर हम एज वाइज इसको देखें, देन देयर विल बी what will be the age-wise distribution of the current smoking status of the Pakistan, and this was reported in 2014. We can see that percentage is increasing in the middle age of the person, and usually it is very high among the individual of the age between 26 to the एज अप टू दी 60 एज तक के जो लोग होते हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जो स्मोकिंग परसेंटेज है वो हाई है. Then we have another research in which we have certain
disorders which are linked to the smoking habits of a person. If a person is prone to the addiction to the smoking, then it may suffer from several type of disorders. These disorders may be the respiratory disorders, these may be the cardiovascular disorder, this may be the dependence, and these are the induction of the cancer, decrease in the immunity which lead to the infectious diseases, infertility, and if the smoking is done by a woman, then it will lead to the low birth weight of the babies. What will be the diagnostic criteria that a person is suffering from the tobacco addiction or not? So we have a DSM, which is the Diagnostic Statistical Manual of the Psychiatric Disorders. उसमें हमारे पास एक criteria है, and this pattern is basically clinically diagnosed by the impairment or the distress condition of at least two of the following within a 12-month period. यानी एक साल के अंदर अगर कोई दो condition simultaneously होंगी, it means the person is suffering from the tobacco addiction. So tobacco, if it is taken in a larger amount and over a longer period than was intended, यानी शुरू में तो basically it is mainly used for the satisfaction and for the pleasure, मज़े में जो है वो ले लेते हैं. Then there will be the persistent desire, and there may be unsuccessful effort to cut down और कंट्रोल द टोबैको यूज़. अगर पर्सन के अंदर परसिस्टेंट डिज़ायर है और वो ही इज़ अनएबल टू स्टॉप द टोबैको, देन इट मे शो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टोबैको एडिक्शन. थिर्डली, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ज़्यादा टाइम उसका इसी एक्टिविटी में लग रहा है कि उसको टोबैको लेना है, उसको सिगरेट लेनी है, क्राविंग बढ़ती जा रही है और रिकरेंट उसमें आ रहा है कि रिकरेंट टेंडेंसी आ रही है, एंड इट विल बी resulting in a failure to perform its major role in a society, like उसका वर्क मुतासर हो रहा है, उसकी जॉब मुतासर हो रही है, उसका स्कूल मुतासर हो रहा है, then it shows that the person is suffering from the addiction. अगर उसकी एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो रही हैं और उसके साथ उसको फिज़िकली प्रॉब्लम भी हो रही है, इट मीन्स कि वो कंटिन्यूसली इतना स्मोक कर रहा है कि उसकी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसमें टॉलरेंस डेवलप हो रही है. तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम दी टोबैको एडिक्शन. And there are severe withdrawal symptoms. Severe withdrawal symptoms are category A and category B withdrawal symptoms. इसमें कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे कि the person at the end has to take in the tobacco और टू रिलीव और अवॉइड द विड्रॉवल सिम्टम्स. यानी लास्ट में क्या होता है कि विड्रॉवल सिम्टम्स जब आना शुरू होती हैं तो पर्सन इज़ सो मच ईगर, सो मच डिप्रेस, सो मच फोर्सफुल कि वो एक सिगरेट ले ले, एक जो है वो टोबैको को री इनटेक कर ले, सो दैट कि सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड हो जाएं एंड ही विल फील रिलैक्स. सो सिम्टम्स अगर कैटेगराइज की जाए तो वो सिम्टम्स कैटेगरी ए और बी की हैं, और इनमें हमारे पास वी हैव द इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी, डिफ़िकल्ट इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज एपेटाइट, रेस्टलेसनेस, डिप्रेस मूड, नींद नहीं आना, इंसोम्निया. तो दीज आर दी कैटेगरी ए एंड बी सिम्टम्स, जिसमें बेसिकली अगर हम देखें तो क्राइटेरिया बी अगर हम उसको कहें तो there will be the continuously distress or impairment in the social, occupational and other important areas of the functioning. यानी कैटेगरी ए ये है कि ये सारी सिम्टम्स हों, और कैटेगरी बी ये हैं कि अगर इन सिम्टम्स के साथ सोशल आइसोलेशन हो, सोशल गैदरिंग में ना जाए बंदा, उसको अवॉइड करे, इतना ज़्यादा उसको जो है वो उसकी क्रेविंग हो रही है सिगरेट की कि ही इज़ अनएबल टू वर्क इन अ सोसाइटी, एंड इट विल लीड टू दी क्राइटेरिया बी, sign of the addiction. एंड बेसिकली ये जो है एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर फिर जो है वो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए पेशेंट को, और उसको फिर फॉलो करना चाहिए कि इस एडिक्शन से अपनी जान छुड़ाए. देयर इज़
फ्रैग्रम स्टॉर्म टेस्ट फॉर दी निकोटीन डिपेंडेंस, और उसमें उन्होंने उसकी कैटेगराइजेशन की है कि देयर विल बी द लो स्कोरिंग लो डिपेंडेंस, देयर विल बी द मॉडरेट डिपेंडेंस एंड देयर विल बी द हाई डिपेंडेंस। उसमें कुछ क्वेश्चनेयर हैं और उस क्वेश्चनेयर के हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो पॉइंट्स अगर उसको फिलफिल कर रहा है तो उस हिसाब से उसको कैटेगराइजेशन की गई है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि हाउ सून आफ्टर यू वेक अप डू यू स्मोक यू फर्स्ट सिगरेट, यानी जैसे ही पेशेंट जो है अवेक होता है, सुबह उठता है, तो वो विद इन 5 मिनट्स अगर उसको क्रेविंग होती है और उसको फ़ौरन सिगरेट चाहिए, तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट है कि उसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है और उसको 3 कैटेगराइजेशन की गई है। अगर उसको 30 मिनट्स के अंदर अंदर चाहिए सिगरेट तो 2 उसको कैटेगराइजेशन दी गई है, और अगर आफ्टर 60 मिनट्स है इसका मतलब है कि उसको इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं है, उसको इतनी ज़्यादा एडिक्शन नहीं है। दैन उसमें अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर कहीं पे प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे सिगरेट जो है वो प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, लाइक चर्च, लाइक इन लाइब्रेरी, लाइक इन ऑफिसेज, तो अगर वो अपने आप को नहीं रोक पाता, तो उस अगर नहीं रोक पाता है और देन द पॉइंट विल बी 1, और अगर रोक पाता है तो 0 है, इसका मतलब क्रेविंग नहीं है। और फिर हाँ, मैं मैक्सिमम कितनी सिगरेट्स ले रहे हैं, अगर 10 से ज़्यादा कम है तो फिर एडिक्शन के लिए 0 पॉइंट्स दिए गए हैं। एंड अगर उसके बाद नंबर ऑफ़ सिगरेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं 11, 21 या 31 हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कैटेगराइजेशन इंक्रीज़ की गई है, 1, 2, 3 पॉइंट की गए हैं। तो टोटल अगर इनका सम अप किया जाए पॉइंट्स का, तो इफ़ द टोटल स्कोरिंग ऑफ दिस स्केल इज़ between 1 to 3, इट शोज़ के लो डिपेंडेंसी है, और अगर 4 to 6 है तो इट शोज़ दैट मॉडरेट डिपेंडेंसी है, और अगर 7 या मोर है अगर आंसर, तो इसका मतलब है कि देयर विल बी द हाई डिपेंडेंसी। तो एवरी स्मोकर कैन चेक ओन स्टेट कि उसकी अपनी स्टेट क्या है, कि वो किस कैटेगरी में खड़ा हुआ है, कि वो लो डिपेंडेंस है एडिक्शन के, या मॉडरेट डिपेंडेंस है, या हाई डिपेंडेंस। तो इस स्केल के थ्रू कोई भी स्मोकर जो है वो अपनी कंडीशन जो है वो एनालाइज कर सकता है। कोई सी भी कंडीशन हो, एक कंडीशन जो है वो लो डिपेंडेंस जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी मॉडरेट डिपेंडेंस में, और मॉडरेट डिपेंडेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी हाई डिपेंडेंस में बिकॉज ऑफ दी टॉलरेंस डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें जो है वो जो रिसेप्टर्स है वो डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, और जो हम देखेंगे कि जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं एसिटाइल कोलिन के और डोपामिन के, कि इनिशियल प्लेजर होगा, फिर उसके बाद आपको वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे उस डोज में, तो यू हैव टू इंक्रीज द डोज, यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द सिगरेट्स, पर आर आपके नंबर ऑफ सिगरेट्स बढ़ते चले जाएंगे, और आपको लगेगा कि आप इंटेलिजेंट हो रहे हैं, आप इस तरह आपका दिमाग बहुत चल रहा है, लेकिन एक्चुअली इट बेसिकली डैमेजिंग योर ब्रेन, रिवॉर्ड सिस्टम उसका पूरा बर्बाद कर देगा आपको, और जो डिपेंडेंसी है वो पूरी आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो इस स्कोर के ज़रिए एवरी स्मोकर कैन एनालाइज इट्स ओन स्टेट, कि वो किस स्टेज पे खड़ा हुआ है, और किसी भी स्टेज पे हो देयर विल बी अ नीड ऑफ दी क्वाइटिंग, क्वाइट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सीवियर हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं वो ऑब्टेन होंगे। तो दिस इज़ द सिंपल बायोलॉजी ऑफ द निकोटीन एडिक्शन, in which there will be the smoking behavior, and the smoker takes the tobacco product and nicotine goes into the body, it metabolites, it's bind to the nicotine cholinergic receptors, and it releases certain neurotransmitters and activate brain reward pathway, and after that all functioning, it leads to the basically tolerance, and this tolerance is basically responsible for the reuptake of the tobacco products, and what the conditions which reinforce to take the tobacco products alux, these are the enhanced performance, these are the mood modulation, and it also reduces the body weight, it also reversal the several withdrawal symptoms, so the person starts self medication of taking tobacco again and again। तो क्या होगा कि फाइनली एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसकी टोबैको की डोज बहुत बढ़ जाएगी। दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, बिकॉज हम फार्माकोलॉजी में इतना डीप नहीं जा रहा है, वी आर डीलिंग विद द फार्मेसी प्रैक्टिस। तो बस ब्रीफली ये देखें कि वो आयन चैनल के थ्रू अपने रिसेप्टर्स को जो है वो एक्टिवेट करता है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स को, and
एंड बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स हैं दे आर वाइडली स्प्रेड इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये एक्टिवेट करेंगे, यानी ये ब्रेन को मल्टीपल साइट्स पे जो है वो जब वो ब्लड में अवेलेबल होगा निकोटीन, तो ये बहुत ब्लड ब्रेन बैरियर वो क्रॉस करेगा एंड इट विल स्टिमुलेट सेवरल रिसेप्टर्स जो कि थ्रू आउट दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे आर प्रेजेंट. And after the continuous stimulation, these receptors are undergo the desensitization as well. यानी पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो जो है वो कोलैप्स हो जाएगा. एंड जो desensitization है इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप यू कैन सी देयर आर सेवरल मल्टीपल यूनिट्स. तो A7 बेसिकली जो हमारे पास सब यूनिट्स हैं अल्फा रिसेप्टर्स के, दे आर अंडरगो desensitization टू मच. तो ये जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर हैं विच आर ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन वे में जो है बेसिकली एक्ट कर रहे हैं, वो कि ब्रेनली जो है वो इफेक्टेड होंगे. अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो ये सारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ये ऑल्टर हो जाएंगे ड्यू टू निकोटीन. डोपामीन को ये एक्टिवेट कर रहा है तो इट विल इंक्रीज द प्लेजर, इट विल सप्रेस द एपेटाइट, इट विल डिक्रीज द बॉडी वेट. निकोटीन enhance the norepinephrine and then it will lead to arousal, appetite suppression. and acetylcholine के थ्रू अगर एक्टिवेशन हो रही है तो कॉग्निटिव एनहांसमेंट हो रही है, मेमोरी इम्प्रूव हो रही है, ग्लूटामेट के जरिए भी लर्निंग एंड मेमोरी एनहांसमेंट है, सेरोटोनिन के जरिए मूड मॉड्यूलेशन हो रही है, बीटा एंडोर्फिन के जरिए एंजाइटी रिड्यूस हो रही है एंड टेंशन क्रिएट हो रही है. गाबा को भी ये बेसिकली एक्टिवेट कर रहा है एंड इट रिड्यूसेस दी एंजाइटी एंड टेंशन. बट व्हेन टॉलरेंस इज डेवलप, व्हाट हैपन कि टॉलरेंस जब डेवलप हो रही है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि ये सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बिकॉज ये इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे एट द सेम डोज. तो फिर मज़ीद निकोटीन लेनी पड़ेगी टू प्रोड्यूस सच इफ़ेक्ट्स. ये सारे इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए फिर निकोटीन चाहिए. निकोटीन डिपेंडेंट हो जाएगा पर्सन. ये एक हमारे पास ब्रेन रिवॉर्ड पाथवे है. आई वांट टू प्ले कि ये आपको उसका एक्चुअल वो नज़र आए. दिस इज द निकोटीन मॉलिक्यूल और ये बेसिकली दीज आर द रिसेप्टर्स और बेसिकली इट एक्टिवेट द डोपामीन, गाबा एंड ग्लूटामेट टाइप्स and it will act on the mesolimbic system and activate the nucleus accumbens. This is the nucleus accumbens and this is the ventral tegmental area of the mesolimbic system of the midbrain. and this activation की वजह से dopamine and सेवरल हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से ये जो है वो एडिक्शन का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है. In this picture you can see that initially the repolarization is the transient and by the activation of the acetylcholine receptors in the synaptic cleft the stimulatory function of the nicotine is prolonged and if the concentration is continue then it will lead to the persistent depolarization. जब persistent depolarization होगी तो channel on रहेगा, channel off and on नहीं होगा बल्कि continuously on है. एंड दिस कंटिन्यूसली ऑन जो है वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसेंसिटाइजेशन ऑफ दी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स. क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा ऑन नहीं रह सकती ब्रेन में. अगर कोई चीज़ काम स्टार्ट हुआ है तो इट हैज़ टू बी ऑफ. एक स्विच ऑफ का चैनल रहेगा जिसकी वजह से अगर हम देखें तो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आएंगी इन दी फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड दी हिपोकैम्पस एंड देयर विल बी देयर न्यूरोप्लास्टिसिटी इन विच देयर इज चेंजेस इन द न्यूरोनल लेवल. अगर हम देखें तो न्यूरॉन्स की जो है कंडीशन ही चेंज हो गई है. जो नॉर्मल उसका पैटर्न था पूरी प्रोटीन उसकी जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है जो उसकी फॉर्मेशन है वो पूरी चेंज हो गई है और देयर विल बी द प्लास्टिसिटी जिसमें बेसिकली देयर विल बी दी ऑल्टर्ड सेल सिग्नलिंग. प्लास्टिसिटी ये कि उसमें जिस तरह सिग्नलिंग हो रही थी एक स्मूथ वे में उस हिसाब से फिर वो न्यूरोनल सिग्नलिंग जो है वो पाथ में ट्रांसमिट नहीं हो सकेगी और ये इंक्रीज होता चला जाएगा. सो इट ऑल ये सारी कंडीशन जो है वो बेसिकली पेशेंट को क्या या इंसान को री इन्फोर्स करेंगी टू टेक अगेन एंड अगेन एंड अवॉइड दी
withdrawal symptoms. So cigarette smoker, it is a basically a nicotine addiction cycle. कि आज cigarette has to be taken, there will be the surge of the nicotine, and there will be the arousal, there will be mood modulation, and after the mood modulation, there is the tolerance, there is the dependence, and if, after that, if the person is not taking cigarette, there will be the withdrawal symptoms, and the person is craving, and then the person has to take again the cigarette, and this cycle continue, and the time उसका शॉर्ट होता चला जाएगा. पहले जो है वो अगर 2 घंटे में चाहिए थी, 3 घंटे में चाहिए थी सिगरेट, अब उसको 30 मिनट्स में चाहिए, 40 मिनट्स में चाहिए, तो उसका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी. एज वी हैव टॉक अबाउट दिस कि दीज आर दी सिम्टम्स जो कि नॉर्मल एडिक्शन से बिल्कुल सिमिलर है, और जो उसके इफ़ेक्ट्स थे उसी के अपोजिट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कि एंजाइटी है, रिलैक्सेशन हो रही थी, यहाँ एंजाइटी होगा, एंगर होगा, अनकंट्रोल होगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, देयर विल बी द वेट गेन, टोबैको क्रेविंग. दीज आर द साइकोलॉजिकल एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, जिसमें हमारे पास डिप्रेशन होगा, डिस्फोरिया होगा, एंड देयर विल बी द एनीडोनिया. Now what will be happen if a person start quitting the cigarette or nicotine? अगर वो immediately stop कर देता है person और वो बर्दाश्त करता है withdrawal symptoms को, then after 20 minutes the heart rate return to normal, and the accumulation of the carbon monoxide जो है वो body के अंदर जो हो चुकी थी वो decrease हो जाएगी. There will be decrease in the heart attacks, and after 1 year and 10 years, the lifespan will be increased, and there will be decreased risk of the coronary heart disease and decreased risk of the lungs cancer or any cardiovascular problem. Another theory is that basically कि जो smoking है, nicotine है, वो basically एक enzyme है, उसको inhibit कर देता है, which is the monoamine oxidase. A enzyme ए और या बी, इन दोनों को इनहिबिट कर देता है, एंड इट इज़ फाउंड कि इसमें अगर हम देखें तो अगर हमें ट्रीटमेंट करना हो तो इसके इनहिबिटर्स अगर हम देंगे इस एंजाइम के, तो इससे फिर भी एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी. तो देयर आर सर्टेन डिजीज़ जो कि साथ साथ होती हैं, वो हम उनके ट्रीटमेंट अप्रोचेस में फिर हम उनको डिस्कस करेंगे कि अल्कोहलिज्म है, अगर ड्रग एब्यूज़ है, अदर डिप्रेशन हैं, शिज़ोफ्रेनिया है, दैन देयर विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज. एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो डिप्रेशन को मैनेज करना उस केस में है जब पर्सन को डिप्रेशन, स्मोकिंग के साथ डिप्रेशन भी हो. एंड इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं जिसमें द पर्सन हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अ डिप्रेशन, और डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए वो स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, और फिर जो है वो फर्दर जो है वो स्मोकिंग के बाद अगर वो उसमें टॉलरेंस आ रहा है, डिपेंडेंसी आ रही है, तो फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो मज़ीद सीवियर हो जाते हैं. So why quite? Because it increases your lifespan, और basically जो भी नशा है वो आपकी quality of life को जो है वो मुतासर करता है. So अगर any person who are giving up the cigarette before 50 years of the age, it basically reduces the risk of the dying. हालांकि चलें ये तो कह रहे हैं कि हर एक का मौत का जो है वो वक्त मुकर्रर है, लेकिन नशे से मरना और सिगरेट की वजह से अपनी जो लाइफ स्पैन है उसको रिड्यूस करना, ये एक तरह की सुसाइड है कि आप बंदा खुद सुसाइड ही कर रहा है. देन इट हैव द सेवरल बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स. सेवरल बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ये है कि नॉर्मली द पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा सिगरेट के यूज़ के बाद. तो इफ़ क्वाइट कर देंगे then there will be the slower heart rate, there will be low carbon monoxide in the blood, and there will be the improved lung function within 3 months. There will be decreased risk of heart attacks and other problems. इसकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी. स्मोकिंग जो है वो बेसिकली डैमेज कर देती है स्किन, कैंसर के प्रॉब्लम आते हैं, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल इन दी प्रेगनेंसी एंड फॉर दी डेवलपमेंट इन्फेंट्स. अनदर प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ डेवलप्ड बाय द यूज़ ऑफ द स्मोकिंग, and there is a more chance for the induction of the diabetes. There may be a chance of the premature or sudden death, यानी किसी भी वक्त कोई साइलेंट अटैक आ सकता है, तो there will be the more chances कि कोई हार्ट अटैक हो सकता है.
हाउ वी विल मैनेज दी निकोटीन एडिक्शन। तो ये एक लंबा टॉपिक है, आई थिंक हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम इसको सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल मैनेज दी निकोटीन एडिक्शन। एंड इट इज़ बेसिकली वी हैव दी स्ट्रैटेजी के फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ टू एक्यूट निकोटीन इंटॉक्सिफिकेशन, एंड वी हैव दी अदर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी जिसमें हमारे पास माइल्ड इंटॉक्सिफिकेशन है, सीवियर इंटॉक्सिफिकेशन है, क्रॉनिक निकोटीन इंटॉक्सिफिकेशन है। देन वी हैव टू रिड्यूस द न्यूनेटल एक्सपोजर टू द निकोटीन, एंड अगर कोई इम्पेयरमेंट हो रही है तो उसको फिर हम कैसे मैनेज करेंगे, तो ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं और डिटेल में फिर हम इसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्यूट निकोटीन इंटॉक्सिफिकेशन, तो बेसिकली अगर बेसिकली निकोटीन बेसिकली स्टिमुलेट्स बोथ ऑटोनॉमिक ganglia, that is the sympathetic as well as the parasympathetic, and it produces the discharge of the both systems, यानी पूरा autonomic system जो है वो activate कर देगा with greater affinity to the neuronal of the skeletal muscle and neuromuscular junctions, and it initiates the postganglionic neurons. So acute toxicity is usually occur if the person is taking nicotine in too much amount, और 50 मिनट से लेकर 1 आवर में जो है बेसिकली इनहेलेशन में एक्यूट टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, एंड यू कैन से कि इट इज बेसिकली अ निकोटीन पॉइजनिंग। एंड यंग चिल्ड्रन जो है वो दे आर मोस्ट ससेप्टेबल बाय सडन इंजेक्शन, and those persons which are also involved in the farming of the tobacco, they are also goes under the nicotine intoxication. Then there will be the mild intoxication having the symptoms of nausea, vomiting, diarrhea, respiratory difficulty, and altering the tachycardia and the bradycardia. And basically all these are related to the depolarization blockade in the muscles, and it causes the flaccid paralysis that lead to the muscle failure and the respiratory muscle failure and the death, यानी पूरा respiratory system जो है वो collapse हो जाएगा and there will be immediate death. लेकिन हम बेसिकली हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो एडिक्शन कर रहे हैं। एक चांस तो ये है कि पर्सन जो है वो एक्यूटली निकोटीन को ले ले, और वो किसी भी वजह से हो सकता है कि या तो उसका स्किन एक्सपोजर ज़्यादा है, वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है निकोटीन की, तो उसका स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई, आई के थ्रू ज़्यादा हो गई, या फिर उसने वो पर्सन जो है वो एडिक्टेड है और वो उसकी कंटिन्यूसली निकोटीन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है सिगरेट की फॉर्म में, और जब वो सिगरेट की फॉर्म में यूज़ कर रहा है तो उसका इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और निकोटीन जो है वो इंटेक बहुत ज़्यादा है एंड above about 50 to 150 mg per ml अगर उसका निकोटीन लेवल बढ़ता चला जा रहा है, देन इट ऑल्सो लीड टू दी टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ द निकोटीन, जिसमें बेसिकली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कोमा है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है एंड सीजर्स हैं, एंड आफ्टर दैट जो है वो डेथ है। यानी लीथल डोज जो है वो बेसिकली अगर हम देखें निकोटीन की, इट इज़ अबाउट 50 to 60 mg जो कि लीथल डोज है, और अगर उसमें अमाउंट एक्सपोजर बढ़ता चला जाएगा तो सजेस्ट ये करते हैं कि अगर ओरल निकोटीन अगर ले रहे हैं, ब्लड के अंदर अगर कंसंट्रेशन 50 to 60 mg है तो वो किल करने के लिए काफ़ी है, एंड ओरल निकोटीन जो है वो बेसिकली ले रहे हैं अगर 500 to 1000 mg ऑफ निकोटीन, तो इट विल बी एबल टू किल एन अडल्ट। और फिर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमीडिएटली फिर ट्रीटमेंट एंड वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज जो है वो ट्रीटमेंट जो है नहीं हो सकता। बट आवर मेन टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर इज़ दी एडिक्शन, नॉट दी टॉक्सिसिटी। तो हम टॉक्सिसिटीज़ को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसका ट्रीटमेंट क्राइटेरिया फॉर दी टॉक्सिसिटी अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दी निकोटीन एडिक्शन इंट्रोडक्शन। द नेक्स्ट विल बी द निकोटीन एडिक्शन मैनेजमेंट।